پیپلز پارٹی کے بارے میں اور میر صاحب کے بارے میں کہ 1 یا 1.5 منٹ کے لیے ضرور وہ بات کریں. سب سے پہلے غوری صاحب کو بلاؤں گا اور پلیز ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ اینڈ پہ ہم جو کنکلوژن جو کریں گے وہ میر صاحب سے کریں گے. لیکن ابھی صرف یہ بات ہم کریں گے پیپلز پارٹی کی. Honorable Presidium, Honorable Clergy, Honorable leaders of the People's Party, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. First of all, I'm very thankful to all of you that you have arranged such a beautiful event. We wish you all the best. As I was concentrating on the topic that you have selected for today, that is commonalities between the Abrahamic religions. As far as the commonalities are concerned between the religions, particularly it is the subject upon which the Honorable Clergy can comment on this topic better. But commonalities, as far as commonality is concerned, I would like to share a few words with you regarding commonalities. What is commonality? Two other aspects of commonalities, that is a social aspect of commonality and the legal aspect of commonality. What is common between you and me? One thing, that my ancestors and your ancestors, they were the sons of this soil. And what is common between you and me, that my ancestors and your ancestors, they struggled for the achievement of freedom and creation of this country. And what is common between you and me is that my ancestors and your ancestors, they casted their vote in favor of the creation of this country. And what is common between you and me is that we are human beings, and what is common between you and me is that we are the citizens of this country, and what is common between you and me that we have right to vote. But at the same time, I really appreciate that you talked about and you are concerned about the commonalities, but taking the advantage of this opportunity, I would like to request you. I appreciate once again that this is an era where everyone is looking for issues. There is anarchy all over the country, and everybody is looking for the issues to create more and more anarchy in this country. We appreciate you that you are looking for the commonalities, but at the same time, I would like to draw your attention to the fact that in the same constitution in which we have been declared a citizen of this country, we have been given a right to vote. In the same constitution, we have been declared minorities. I would like to request to you, please note my request that from today, please also take some further steps and positive steps and progressive steps towards the mission and the target that we may be living as an equal citizen of this country. Thank you. یسو کے پروفیسر اور قدرت والے نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو فیصل میر کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج کے اس خاص اکٹھ کے لیے اور اس خاص افطاری کے لیے جو محبت دکھائی گئی ہے اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم خدا کے خداؤں ہیں، اور ہر طرح کے تفرقے یا ہر طرح کی ایسی بات سے جس سے کوئی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہم جو ہے دعا گو ہیں بھائی کے لیے، ان کی ساری کاوش کے لیے، کہ اس ہم آہنگی کے لیے، اس محبت کے لیے کہ جس کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ دل کھولا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں، اور پھر جو ہے وہ افطاری میں شریک ہو کر انہوں نے اپنی محبت کو دکھایا ہے. ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزار ہیں. تھینک یو. بیٹا یہاں پر وہ بھی آئے گا، وہ بات کرے گا. بڑا ینگ ہے، وہ ہے چھوٹی سی بات. جی میں سب کی سلامتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج ہم سب اس جگہ میں اکٹھے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ
जिस तरह से इन्होंने एक स्टेप लिया है कि मोहब्बत दिखानी चाहिए, और मैं बाइबल के एक वर्स को बस कोट करूँगा कि बाकी चीज़ों को ज़वाल होता है लेकिन कलाम कहता है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। तो मेरी दुआ है कि ये जो मोहब्बत का स्टेप लिया है ये फर्दर इसी तरह मोहब्बत कायम रहे, ताकि दोनों कौमों में ये मोहब्बत का फरोग बढ़ता जाए। और इसी तरीके से हमारी दुआ है कि खुदा ने आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा हमारे नायब सदर साहब आएंगे, और सिर्फ टाइमिंग का मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तो मीर साहब ने इतनी मोहब्बत दिखाई है, हमने अपने वर्ड से इनको अपनी मोहब्बत जाहिर करें, लेकिन सिर्फ टाइमिंग जैसे राहिल ने किया। मसीह में तमाम बहन भाइयों को सलाम। जनाब फैसल मीर साहब का मैं दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और 10 दफ़ा सलूट करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वो काविश की है जो आज तक किसी मुसलमान ने नहीं की। इन्होंने जो कायदे आज़म ने बनाया था कि हम मुस्लिमों को बराबर का दर्जा देंगे पाकिस्तान में, वो फैसल मीर साहब ने मिसाल कायम कर दी। मैं हसन मुर्तज़ा साहब का भी इस मौके पे नाम लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे नायब सदर पाकिस्तान सेंटर पंजाब का बनाया। मैं उनका भी था दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से। हमने खासकर पाकिस्तान के मसीहों ने पाकिस्तान को SP सिंघा साहब ने वोट डाला तो पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज हम इसी बदौलत यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। वो कि पाकिस्तान में, क्योंकि आज जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा है इफ्तारी के हवाले से मसीहों का, लेकिन 2 बातें इधर उधर करूँगा वो लाजमी है। तो वो आज तक जो भी मसीहों को उस लिहाज से कायदे आज़म ने फरमाया कि बराबर का दर्जा मिलेगा, वो कि वो आज तक पाकिस्तान में नहीं मिला। मसीहों ने आज तक पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी में कोई हिस्सा नहीं लिया। मसीहों ने पाकिस्तान को एजुकेशन दी, मसीहों ने पाकिस्तान को हेल्थ दी, मसीहों ने पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। तो इस लिहाज से मसीहों का बहुत सारा पाकिस्तान में वजूद है, और पाकिस्तान को चाहिए कि हमें भी वो हकूक दें जो हमारे बराबर के बनते हैं। तो पास्टर विल्सन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बराबर यहाँ उनसे काविश करके फैसल मीर साहब से आज तारी करके। दूसरा ये हमारा ये मुतालबा है कि यमुनाबाद में और बहार कॉलोनी में एक एक टिकट मसीहों को मिलनी चाहिए। तो हम पास्टर विल्सन साहब की भरपूर हमायत करते हैं, जहाँ भी इन्हें ज़रूरत होगी हम इनका साथ देंगे। मैं भी एज ए नायब सदर होते यहाँ इनकी भरपूर हमायत का, पास्टर विल्सन साहब का साथ देने का वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने मामले में जाबाज में बहुत सारी ये बात भी की और ये फायदे भी की। ये मीर साहब के नोटिस में बात नहीं है। हम 25-30 लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और इन्होंने वहाँ पर भी दलील से बात की। तो मैं अपने बुजुर्ग साहब भट्टी साहब को भी चाहूँगा कि क्योंकि इस एरिए के बुजुर्ग हैं, बड़ा इज्जत अदब से सबसे मिलते हैं, तो खुदा इनको बहुत बरकत दे। जी मीर साहब के लिए मेरी तरफ से सबको सलाम। शुक्रगुजारी इस बात की करते हैं मीर साहब ने जो हम सबको इकट्ठा किया, ये बड़े ऑनर की बात है। हमें इसी तरह मेल मिलाप रखना चाहिए। हम एक दूसरे के भाई हैं, मजहबी तौर पर भी और इसी तरह इंसानी तौर पर भी। तो इसी तरह हम इनकी कामयाबी के लिए सब दुआ करें कि खुदा इनको कामयाब करे और खुदा को अपनी बरकत से मालूम करे। आमीन। साहब आए हैं, वो भी इस एरिया के बहुत करता नौजवान है। मैं चाहूँगा चंद अल्फाज वो भी बोले मीर साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और इस इवेंट के लिए जो एक खूबसूरत इवेंट रखा। लेकिन मेरे जो खास ये 1 से 1.5 मिनट प्लीज। मसीह यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबको सलाम और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुद को हम बेकरार करते हैं, फिर तेरा इंतज़ार करते हैं, कम नहीं ये शरफ के ये हमको दोस्तों में शुमार करते हैं। बस मेरे लिए यही है कि मेरा ये भाई दरीना दोस्त है मेरा, पिछले हम 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। विल्सन साहब ने जहाँ हमें खड़ा कर दिया वहीं पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। खास रोहन साहब से भी, क्योंकि ये
कोऑर्डिनेशन करते हैं वो ताकि खातमों की मीटिंग पर मंथ इसी में वहीं पे मीर साहब गए। मुझे मीर साहब तो वो झिझकते नहीं वो बात करते हुए, लेकिन वो मैं झिझकता हूँ, वो मुझे मना जरूर करेंगे, लेकिन सर ये महफिल आज मेरी बरादरी की है तो फिर सिर्फ सुनना ही है सर, बैठ के तो सिर्फ सुना। मैं कल असगर सुल्तान साहब के घर में गया, मीर साहब ने मेरी मीटिंग अरेंज कराई, तो ये कह रहे थे बागड़िया पिंड आए वो पिंड की मैं तो समझे ऐसे बैरियर टाउन में चला गया या DHA में चला गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो कानूनी है। लेकिन इन्होंने जो मैं प्यार करता हूँ मीर साहब को, ये जितना इनको मैं जानने लग गया हूँ, लेकिन इन्होंने इनके खानदान में बारे में बातें जो बताई, साहब की तस्वीर उतारती की मीर साहब की, वारिस मीर साहब की, कि ये इतने इंसानियत परस्त, बल्कि आप एक मिनट के लिए आ जाए तो इनके खानदान की मेरे दिल में और बहुत सारा है कि सियासी जरूर है लेकिन इनके खानदान में एक इंसानियत है। अहमद मीर साहब के छोटे भाई हैं, तो पता नहीं ये कैसी बात लगी कि मैं खुद तो थोड़ा सियासी भी हूँ। इमरान खान को काबू नहीं कर सके ऐसे पूरे पाकिस्तान च, एक ही शख्स उठे निगरान वजीर वो है आमर मीर, इन्हों का छोटा भाई इमरान खान को हिलने नहीं दिया, अमनो अमान बदअमनी दिनों में खत्म की कि ये खानदान इतना इंसानियत परस्त है, लोगों से प्यार करते हैं, तमाम दोस्तों से प्यार करते हैं, तमाम मजाक से बात करते हैं। तो मेरे लिए भी ये एजाज़ और ये बरकत की बात है कि इनको खुदा और बरकत दे और बढ़ाए। तो हमारे जो लाहौर के सदर है पीपल्स पार्टी की, हम ये छोड़ नहीं सकते, ये पार्ट है पीपल्स पार्टी का। जहांगीर साहब खोकर साहब वो भी तशरीफ लाएंगे और जो पार्टी के बारे में और ये सब। आज की शाम अजीज़ ग्रामी स्पेशल खास लोग हमारे पादरी बिशप साहबान और पार्टी के कारकुन और आए हुए मेहमान सबको सलाम। ये आज की शाम हम मोहब्बत में बैठे हैं और ये सारी काविश बिल्सन असगर साहब की और फैसल मीर साहब की कि हम इनके यहाँ इनके घर में आज रोज़ा अफ्तारी के मौका पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप संधू साहब को भी कहूँगा अगर बाहर है तो बुला लें। लोधी साहब एक मिनट के लिए, क्योंकि हमारे भाई हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप बड़े जज्बाती हैं, तो जज्बात में मोहब्बत का इजहार आप भी करें प्लीज। बिस्मिल्लाह। मैं अपने मसीह भाइयों का बहुत मशहूर हाँ कि उन्होंने एक चॉइस फैसल मीर की की है। फैसल मीर एक हीरा आदमी है, अगर तुसी चेक कर लेता है साढ़े पूरे मुस्लिम लोग जिन्हें भी ने कभी किसी ने कभी भी इफ्तारी नहीं करवाई किसी बड़े भाइयों। फैसल भाई बहुत ही नाइस आदमी ने जिन्होंने नाल मैं चल रहा कि तुसी इन्हां नाल चलोगे इंशाअल्लाह ताला तुहाडा फहर जिहड़ा है फहर नाल बुलंद होएगा। ठीक है, जिस टाइम भी तुसी इन्हां नूं कॉल करोगे तुहाडा इंशाअल्लाह ताला हर काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी तरह अनवर साहब भी तशरीफ लाएंगे, समुद्र को कुछ में बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक शेर जो है जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जेकर दर्द वंडा नहीं सकते आपा फिर सुख पा नहीं सकते, जेकर दर्द वंडा नहीं सकते आपा फिर सुख पा नहीं सकते, जे जित मुकदरा च होवे ते बंदे कदी हरा नहीं सकते। तो ये कैंडिडेट्स के लिए था। और बीइंग अ लॉयर, क्रिश्चियन लॉयर, और मेरी किसी भी पार्टी की नॉमिनेशन नहीं है, अभी तक भी नहीं है, तो इस पंडाल में बैठ के अच्छा लगा, क्योंकि जो सेंटर की जो पिक्चर है बीइंग अ लॉयर, हम समझते हुए कि पाकिस्तान के जो आइन बने उनमें जो फाइनलाइज आइन 1973 का अभी तक जो जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है बीइंग अ लॉयर कोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं, तो ये उनके बानी जो है वो जनाब जी। और ये आईनी एक बात भी है, और दूसरी बात ये है कि मजहबी बात बीइंग अ क्रिश्चियन करता चला जाऊं तो मोहब्बत जो है, जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोजे जो है फर्ज हैं,
اور اسی طرح محبت جو ہے ہمارے دین کے مطابق، مسیحی دین کے مطابق، اگر آپ یوحنا کا خط پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ محبت آپ پر فرض ہے. تو بینگ محبت اگر ہم اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو خدا محبت ہے. تو جب خدا ہمارے اندر ہے تو فرض ایٹومیٹک اسٹارٹ ہو جاتا ہے. چاہتا ہوں کہ بڑے کلوز کروں لیکن کچھ چیزیں ضروری کرنی. آشا ہماری بیٹی بیٹھی ہے, آشا کو چاہوں گا کہ آپ اتر آئے اور جو میر صاحب جس طریقے سے آپ کو پیار کرتے ہیں, جو پکارتے ہیں, وہ بھی ظاہر کرے کہ تو ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو کس نظر سے یہ دیکھتے ہیں. خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام. سب سے پہلے میں اپنی خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم سب کی زندگیوں میں اتنا خوبصورت وقت بخشا کہ آج ہم سب بیٹھ اکٹھا ہوئے. اور اس کے بعد میں پاسٹر ولسن صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمیشہ مجھے بہت عزت دی. اور جس طرح سے ولسن بھائی ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مجھے بیٹی کا لقب دیتے ہیں, اسی طرح سے میں فیصل میر صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جب سے 1 سال ہو گیا میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا. پہلے میں نونی سے بلانگ کرتی تھی, لیکن جب سے جوائننگ کی ہے تو خداوند کے فضل سے جتنی عزت پیپلز پارٹی میں مینورٹیز کی فیمیل کو ملی میں نے اور کسی پارٹیز میں اس عزت کو نہیں دیکھا. اور فیصل میر صاحب ہمیشہ میرے سر پہ جب سے وہ ملے ہیں اور میری رہنمائی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ہمیشہ بیٹی کا لقب دیا ہے, اور بہت زیادہ مجھے جگہ بہ جگہ بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں, اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور آج جو انہوں نے یہ تاریخ تمام کر کے ایک محبت کا پیغام ہماری مینورٹیز کو دے دیا ہے, یہ تا حیاتی یادگار رہے گا, اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور آپ سب کے پاسٹر صاحبان جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں, آپ سب نے بہت قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. اور آپ لوگوں کو سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنی چرچز میں ہمیشہ دعاؤں کی ریکویسٹ کیجیے گا, تاکہ جو ہمارے آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں فیصل میر صاحب, ہم اپنے ووٹ کا حق ادا کر کے ان کو جو ہے نا ان کی سیٹ پہ جو ہے نا وہ پکا دیں. شکریہ. ایک یا 2 وقت کے بعد ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. یوتھ کے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں بھائی عابد صدو, وہ بھی آئیں گے. وہ بھی دن رات اس حلقے کے لیے میر صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ دن دیکھ رہے ہیں رات. اور ہم دو راتوں مسلسل نہیں سوئے, تیسری رات 1.5 گھنٹہ سوئے, تو پھر بھی ہم سیدھا الیکشن کمیشن آفس سے آئے ہیں. تو بس 1-1.5 منٹ کے لیے خداوند کے عظیم بابرکت جلالی اور خدامت نام ہے آپ سبھی کو سلام. جی یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج ساری اقلیت مینورٹی جمع ہے, مسلم بھائی بھی ہیں. اور سب سے پہلے میں فیصل میر صاحب کا نہایت مشکور ہوں, جو ریالٹی میں جی وہ بہت سارے سب نے تعریفیں کی ہیں, لیکن وہ بہت لونگ ہے. میری ملاقات جو ہے وہ چند دنوں سے ہے اور بڑے فرینکلی اور بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں. اور یہ جو انیشیٹو انہوں نے لیا, جو مطلب اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی لائف میں ابھی تک کسی پارٹی کو بھی یا کسی رہنما کو بھی ایسے کرتے نہیں دیکھا جس طرح سے یہ آج سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خدا ان کے نام کو جلال ہے اور یہ ایک اچھے انسان کی جو ہے وہ پہچان ہے. تو محبت ہے جی, یہ دیکھیں کلام کا بھی فیصلہ ہے, مطلب جو محبت رکھتا ہے وہ خدا کو نہیں, جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا محبت ہے. اور یہ اچھے انسان اور اچھے لوگ جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں کے اندر یہ ہوتی ہے. تو باقی سب لوگوں سے گزارش بھی ہے, جیسے بہن عائشہ نے کی ہے, کہ اپنے اپنے چرچز میں آپ لوگ جو ہے اناؤنسمنٹ کریں تاکہ ہمارے جو فیصل میر صاحب ہیں وہ فتح یاب ہو. تھینک یو سو مچ. اسلام بہت اچھا لگا اور ہمارا کام ہے دعا کرنا. تو میں یہی کہوں گا کہ آج شام جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں, خدا کو دیکھنے کا اور ملنے کا اتنا آسان راستہ آپ کو مل گیا ہے, لکھا ہوا ملا ہے کہ خدا محبت کریں گے تو خدا ملے گا اور خدا ہی آپ کو کامیاب ہے. صاحب کو بلانے سے پہلے 1 منٹ کے لیے پاسٹر عامر صاحب کو چاہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور پرویوز آگے مل کے. اور یہ بڑی خوبصورت یہ لکھا ہے گفتگو ابراہیمی مذاہب کی مشترکہ تعلیمات. تو اس کے بعد ٹوٹا جانے سے
मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। यकीनन जो आयत के मुताबिक हमें इनवाइट किया गया है, और ना सिर्फ जो है इनवाइट किया गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस मोहब्बत का जो इजहार भी उसी तरह किया गया है। हालेलुया। सो हम दुआ को हैं कि मीर भाई को जो है वो कामयाबी हासिल हो, और उसके लिए चर्चिस में भी दुआ को भी है हम, और साथ में इसके लिए जो वोट डालते हैं उनको ये रिक्वेस्ट भी है कि वो वोट भी डालें, ताकि हम जो है एक अच्छी काविश में काम कर सकें, और ना सिर्फ ये मोहब्बत को इस कमरे में बंद करें बल्कि लोगों तक भी लेकर जा सकें। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ भाई विल्सन का, जिन्होंने दावत दी है। हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, बिशप साहिबान, पास्टर साहिबान, मेरी बहनें बेटियाँ, मेलसूस फैसल मीर साहब, पास्टर विल्सन असगर साहब, सब की खिदमत में मेरा बहुत सलाम। मैंने आना नहीं था क्योंकि मेरी मिसिज शरीक हयात जिंदगी का साथी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, तो मैं एमरजेंसी से, क्योंकि मैं वादा कर चुका था और मैंने अनाउंस किया था अपने मुंह से कि हमने पहुंचना है, उनके लिए दुआ करें कि खुदा में जिंदगी से तंदुरुस्ती उम्र की दराजी दे। लेकिन ये है कि अगर मसीहों को बुलाया है तो मसीहों का ये वतीरा है कि जिसका साथ देते हैं उनके साथ हमेशा साथ निभाते हैं। तो आखिरी बात ये है कि ऐसे इस्म सिखा दे सानू, इस्म यानी लफ्ज है, आखिरी बात है, ऐसे इस्म सिखा दे सानू कि हरे परे हो जाइए, ऐसा इल्म अता कर सानू बड़े खरे हो जाइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीर साहब को बहुत शुक्रिया। असम मीर साहब को दावत देने से पहले कुछ मेरे दिल में बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि कैमरे की नजर जो, मैंने जब फेलोशिप मीटिंग थी तो मैंने मैसेज थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने इनको कहा था कि 1 बजे तो ये दिन जो पीपल्स सारी पार्टियों के लिए टिकट्स अनाउंस हो रही हैं, दे रहे हैं, एडमिशन हमारी टिकट हम फॉर्म जमा करा रहे, टाइम नहीं था। तो मैंने उस दिन भी जूम में बैठे थे, पूरे पंजाब की टिकट के फैसले हो रहे थे, लेकिन ये आगे यहाँ पर पास फेलोशिप मीटिंग में जो हमने दावत दी थी, तो मैंने इनको कहा मीर साहब अगर देर हो रही है गाड़ी में बैठ जाते हैं जल्दी जल्दी, तो मैं मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, मैनू कहते पंजाबी तुम जाके बैठो, मैं तो इतने बैठा, मैं वेला हो गया। अच्छा एक और बात, वो मैं कैमरे की बाद में बेशक आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने बल्कि इनको मना भी किया वो बात। तो जब पाक शराकत होने लगी, मेरे साथ बैठे थे उसी मीटिंग में, तो मैं उठ गया, मैंने इनको खुद कहा मैं आप बैठ जाए, क्योंकि वो हमारा फर्ज है, फ्रीजर बहुत है, फ्रीजर हमारी इबादत का। मेरे तो पहले उठ गए, कहते मैं अमेरिका जाना रहता तो ज्यादा मैं करता। मीर साहब, मैंने पहले दिन भी ये कहा था, आज बूढ़ा जानी साहब को आगे काफी मसीह को बैठे, मैंने ये कहा था कि मुस्लिम हमसे ज्यादा हैं, वो वोट ज्यादा होंगे, क्रिश्चियन वोट कम है, वो वोट कम होंगे। जब आप परसेंटेज निकालेंगे मुस्लिम की और क्रिश्चियन की, तो क्रिश्चियन की परसेंटेज ज्यादा होगी। आपके सुनने पाएंगे जनाब फैसल मीर साहब और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। हालेलुया। अल्लाह के पाक नाम से, खुदावंद के पाक नाम से, मैं इस वक्त जो पास्टर बूटा जानी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा इनका एहसान मंद हो गया हूँ कि उनकी मिसेस हॉस्पिटल में है, तो उसके बाद वो यहाँ पे तशरीफ लाए। अल्लाह ताला उनकी मिसेस को शफायात करे और सेहतमंद करे। और मैं बिशप अशरफ जयदीन साहब का, बिशप जोधल साहब का, पास्टर रहमत सिद्दीक साहब का, पास्टर डेविड सिद्धू साहब का, पास्टर लोबन साहब का, लीडर असगर सुल्तान साहब का, पास्टर इसहाक भट्टी, पास्टर गौरी साहब, पास्टर असगर सुहेल साहब, पास्टर जवेद मसीह साहब, अनूप साहब, पास्टर डेविड साहब का, हमारा जहांगीर खोकर साहब, और किसी दूसरे पास्टर जिसका मैं नाम नहीं ले सका, उन तमाम का, पास्टर लियाकत साहब का, उन तमाम पास्टर्स और बिशप्स और लीडरान का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ पर तशरीफ लाए मेरी दावत पर।
پاسٹر ہارون صاحب کا بھی، اور خاص طور پہ پاسٹر ولسن صاحب، عائشہ شفیع اور یوتھ وک سے جاوید سدھو صاحب جو ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کرنے میں اور آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے میں عابد سدھو صاحب کا یہاں پہ کردار اپنا ادا کیا. اور میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو سارا کی وجہ کیا بنی. میں آپ کے لیڈران کی ایک محفل میں تھا، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے جب یہ سارا آپ کا میں نے گفتگو سنی، وہاں پہ ایک سرمن تھی جو کہ بہت امپریسو تھی، اور میرے لیے وہ ایک اچنبھے کی بات تھی کہ ہم لوگ کہ میں ایک اس کمیونٹی میں، ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو دانشوروں میں مجھے پاسٹر ولسن صاحب لے گئے تھے. آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ اپنی مسیحی برادری کے انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، پاسٹرز ہیں، بشپس ہیں، اور مجھے اعزاز حاصل ہوا وہاں پہ بیٹھنے کا. تو اس پر میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ اتنے بڑے برینز جو ہیں کمیونٹی کے، مسیحی برادری کے، ان میں اگر میں بیٹھا ہوں تو میں ان کے ساتھ مزید صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو نہیں بلایا. الیکشن تو ہم لوگ جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن مجھے وہاں پہ بیٹھ کے احساس ہوا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ مزید رابطہ بڑھانا چاہیے. اور ابھی یہاں پہ پاسٹر غوری صاحب نے شاید مطالبہ کیا کہ ان کا کنسرن تھا کہ ہم لوگوں کو ایکول رائٹس نہیں ہیں، اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے، بہت زیادہ ہے اس بات کا. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، وقت تھوڑا ہے لیکن میں ٹائم دوں گا تھوڑا سا اس واقعے کو درست ہوگا. آج سے 2016 کی بات ہے، سندھ فیسٹیول ہو رہا تھا، تو میں وہاں پہ تھا. چیئرمین صاحب تھے فواد چودھری، اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا. تو چیئرمین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے آئین میں ایک نقص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں مائنارٹیز کو پرائم منسٹر بننے کا حق نہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کسی کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اختیار میں ہو تو میں یہ قانون چینج کروں گا، یہ جو اس آئین میں امینڈمنٹ کروں گا، اگر میرے پاس پاور آئے، اتنا میرے پاس میجورٹی ہو، تو ہم اس لا کو چینج کریں گے کہ صرف مسلمان وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو اس پر فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین صاحب یہ آپ نے بیان جو دیا آج اخبار میں چھپا ہوا ہے، تمام پاکستان کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کرسچنز کو پرائم منسٹر بننے کا رائٹ دینا چاہتا ہے. تو اس پہ چیئرمین صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جواب تھا، اس وقت 2016 کی بات ہے، 2018 میں الیکشن ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کا حصہ رہے گا 2018 کے الیکشن میں. اگر لوگ میری اس بات سے کی وجہ سے مجھے الیکشن میں نقصان پہنچتا ہے تو میں 2023 میں بھی میں بات کروں گا، اور 2023 میں بھی اگر لوگ میری بات نہیں مانتے تو 2028 میں بھی یہی بات کروں گا. اس پہ فواد چودھری نے کہا جی کہ پھر تو میں تو پارٹی چھوڑ دوں گا، اور اس نے واقعی 3-4 مہینے بعد پارٹی چھوڑ دی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں پاسٹر غوری صاحب کہ آپ کا کنسرن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تک کو یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ ڈپرائیو آف کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں مسیحیوں کا امیدوار ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ سارے ایک یہ بھی ایک رات کو جب ہماری ایک بڑی لمبی میٹنگ تھی جس میں کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ڈیسائیڈ ہو رہے تھے، تو پاسٹر ولسن صاحب کا جب نام آیا تو فریال تاجپور صاحبہ نے کہا، ان کی تصویر بھی لگی ہوئی یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ 166 پہ جنرل ہمارے اسلم گل صاحب ہیں کینڈیڈیٹ، اور ان کے علاوہ پاسٹر ولسن صاحب نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو فریال بی نے کہا کہ گل صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ ایک مسیحی امیدوار نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مسیحی امیدوار کو پریفرنس دینی چاہیے تاکہ ایک میسج جائے
पूरे पाकिस्तान में कि हम लोग जो है वो इस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे नहीं है कोई भी रिलीजन के हवाले से। तो अल्टीमेटली असलम गिल साहब जो है वो प्रेसिडेंट है लाहौर के, तो लेकिन हम लोग ये कोशिश असलम गिल साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की गई उधर, तो एंड ये हुआ उस कॉन्वर्सेशन का कि असलम गिल साहब और पास्टर विल्सन साहब बैठ के डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन इलेक्शन लड़ेगा। ये नहीं कहा गया कि पास्टर साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये कहा गया कि आप आपस में फैसला करें। तो पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा गुंजाइश है मसीह बरादरी के लिए। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लंबी बात हो जाएगी कि ये आपके पास जब मैं आया तो उस वक्त मैं छोटी सी आपके सरमन के दौरान मैंने जो गुफ्तगू सुनी उसमें मेरा दिल किया कि मैं इस पर बात करूं कि हमारे दरमियान, हमारे दोनों मज़हब के दरमियान चीजें कौन सी कॉमन है। तो मैं आप लोग खुद इंटेलेक्चुअल हैं, आप तो मजहब के हवाले से, बाइबल और कुरान के हवाले से मेरे से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं वो होता ना कि जैसी साधु भी को पता है तो दखल की कोशिश करते हैं, जैसी भी वो मैं भी बताने की कोशिश तो नहीं करूंगा, लेकिन कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि मैंने कलेक्ट की है कि क्यों एक तो हम तमाम जो मुसलमान और मसीह बरादरी है एक खुदा पर यकीन रखते हैं, और हम तमाम जो है वो हजरत इब्राहिम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और हम दोनों मज़ाहिब जो है वो यरूशलेम को एक मुकद्दस जगह समझते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है हमारा जो डे टू डे की जो प्रैक्टिस है, मसलन इंसान जब फौत हो जाता है तो हमारे दोनों मज़ाहिब में है कि जो इंसानी बॉडी है वो एक मुकद्दस चीज है, इसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो हम बड़े एहतियात से, बड़े एहतराम से उसको दफनाते हैं, जबकि बहुत सारे रिलीजन जो है वो इसको बॉडी को जला देते हैं फौत होने के बाद। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं कि बाइबल में भी बार बार यही है और कुरान पाक में भी बार बार यही है कि जो इंसानी मुआशरा है उसमें अल्लाह ताला की इताअत से हम लोग जो है वो तरक्की पाते हैं। और दोनों मज़हब में हमारे ख़ानदान जो है उसकी इकाइयत एक बुनियादी चीज़ है कि ख़ानदान पे जोर दिया गया। आपके जो मसीहियत में तो तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हमसे ज़्यादा इस ख़ानदान की इकाइयत पर मसीह बरादरी का मैं तो कहा करता हूँ कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि एक पास्टर साहब बात कर रहे थे कि हम लोग जो है खुदा हर जगह मौजूद है, हमारा ये यकीन है। बिशप साहब कह रहे हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है। ये मसीहियों का और मुसलमानों का एक बुनियादी फैक्टर है कि बुनियादी यकीन है कि खुदा हर जगह मौजूद है। ये हर मजहब में इस तरह नहीं है, वो उनके मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की उनकी वालदा थी। ये भी दोनों मज़ाहब में यकीन है लोगों का। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वापस दुनिया पे आएंगे, ये भी हमारा बिलीव है। तो ये चीज़ें मैं बातें सारी इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये बातें जो हैं अपने मुआशरे में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल को एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए बतानी चाहिए, ताकि उन्हें जो ये मजहबी इंतहापसंद जो है वो इसको जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसको हम उस पर कंट्रोल कर सकें। तो मैं बात बड़ी लंबी कर दी मैंने, तो मैं थोड़ा सा आपको सियासी बात कर लूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में मसीह बरादरी की एक चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो आपके साथ मिलकर स्ट्रगल करते रहे हैं। आपके लोग भी शहीद हुए, शहबाज भट्टी साहब, हमारे सलमान तसीर साहब, और दोनों का एक ही था जो स्ट्रगल थे और उनके चार्जेस भी उन पर सेम थे। तो और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग या पीटीआई के जो दोस्त हैं हमारे वो आप लोगों के खिलाफ हैं, जो आपके राइट्स की बात नहीं करते, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा करीब एक दूसरे के हैं। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो मेरी कैपेसिटी में हो सकेगा। पासिल बूटा जानी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही हुई थी, तो मेरी खुशकिस्मती है कि उसके बाद मुझे दोबारा इनसे मिलने का मौका मिला और आप तमाम दोस्तों से मिलने का मौका मिला। मैं बात को वाइंड अप करूँगा और आप तमाम दोस्तों का एक इंतहाई मशहूर हूँ
कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे हमारी इफ्तारी के इनविटेशन पर तशरीफ लाए। हालेलुया। करते हैं सब जितने यहाँ पर हमारे आदमी मौजूद लीडर मौजूद लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।